Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again. I'm not very sure what's the gap between the last lecture and today's lecture, but मटीरियल का चैप्टर हम कंटिन्यू आज करने वाले हैं. ओके, सो आज तक चर्चा, डिस्कशन नॉर्मली ऑन द थियोरेटिकल पार्ट, बट द थियोरेटिकल पार्ट इज एक ज़माना था जो इतना पुराना ज़माना नहीं था, मे बी 1 या 2 साल पहले, प्री पेंडेमिक, where the theory part of any chapter was not very important. You had the option to read it, to pay attention on it, to devote time to it at the very end. But the moment an MCQ style questions are being asked to you, which in all probability this year's batch also has to face, well, it's a good thing, it's not a bad thing, but theory पे उतना ही ज़्यादा ध्यान देना है, equally जितना आपको प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है. सो दैट इज द रीजन मैं उतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इन टीचिंग वट एवर इज द पार्ट विच इज द थियोरेटिकल पार्ट. टुडे वी डू द लास्ट पार्ट एंड देन वी विल गेट इनटू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, वेरी क्विकली थोड़ा रिविजन के मटेरियल कॉस्ट, जिसके कायदे कानून कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में दिए गए हैं, वो भी थियोरेटिकल पार्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट हैव वी लर्नड, हमने खरीदते कैसे हैं माल, बराबर, उसको इशू कैसे करते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और उसके खरीदने और बेचने में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, वो हमने समझने की कोशिश की है. नाउ आई हैव टोल्ड यू द खरीदना एंड द इशू also happens at your home, घर पे भी होता है, but there is no documentation involved until and unless you go to a departmental store and you buy things and you are given a document, a bill, ये आपने खरीदा है. Okay, that's basically one document, fine. हाँ, but when it comes to a big organization, very simply, example, if the police department, okay, the Maharashtra police department wants to buy kapda so that they can stitch clothes, uniforms for their commissioner, deputy commissioners, for their constables, their sub inspectors, there are so many. तो can they just go to anyone in the market, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑर्डर होगा. नहीं, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है उसके अंदर, इतना पैसा इन्वॉल्व है. ओके, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ.
ओके उन लोग जो जो बेल्ट बनाते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स के जो बेल्ट बनते हैं, ओके उसका भी ऑर्डर देना पड़ता है किसी मैन्युफैक्चरर को मटेरियल के लिए। तो रिपीट, देयर हैव बीन इन द पास्ट मल्टीपल स्कैम्स जो ये यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। इट हैज बीन सो बैड दैट देयर हैव बीन स्कैम्स कनेक्टेड टू द कॉफिन ऑफ द वॉर हीरोज जो बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं हमारे लिए, उनके कॉफिन में स्कैम हुआ है, उसकी खरीदारी में स्कैम हुआ है। तो एक इंसान, एक नेता, एक लीडर, एक डिपार्टमेंटल हेड जो है सरकार का हिस्सा, बट अपनी जेब भरने के लिए वो क्या गलत कर सकता है, किस लेवल पे, वी डोंट नो। एंड ऑल्सो इन दिस कोविड टाइम्स, कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसमें फ्रॉड कितना हो रहा है, लॉट, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और पैसा देख के किसी भी गलत इंसान की नज़र तिरछी ज़रूर हो जाती है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर इज फॉलोड एट अ बिग लेवल। हाँ, सो वी लर्नड डॉक्यूमेंटेशन जिसमें एक था ये परचेस रिक्विजिशन, देयर वर मल्टीपल खरीदारी से कनेक्टेड, परचेस ऑर्डर, देयर वाज गुड्स रिसीव्ड नोट, गुड्स मिलने के बाद में इंस्पेक्शन नोट कि जो माल आया है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने क्वालिटी के हिसाब से, बिकॉज देयर इज सच अ लॉट ऑफ गुड्स दैट कम। तो आई एम नॉट वेरी श्योर आपने कभी पिक्चर में वो सीन देखा होगा कि भाई किडनैपर ने मांगा 2 करोड़ लेके आओ और लेके गए, और ऊपर के 2-3 नोट ही नोट है, अंदर का कोरा कागज है। तो यू नेवर नो कि भाई पहले 2-3 बॉक्सेस के अंदर माल अच्छा है, उसके बाद तो माल खराब है। हाँ, तो यू हैव टू चेक, इंस्पेक्शन तो होना चाहिए। तो देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर आर पीपल, स्पेशलाइज्ड पीपल जो ये काम करते हैं। नाउ लास्ट टाइम व्हाट डिड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, किस पे हमारा फोकस ज्यादा था? स्टोर्स। Stores is that part, it is that part of a company which is a very core part. Okay, आजकल के मॉडर्न बैंकिंग को जो सब डिजिटल है, सब डिजिटल हो चुका है, ओके उसमें कोर बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोर बैंकिंग? पहले था कि बॉम्बे का ब्रांच सिर्फ बॉम्बे का ब्रांच है, उसे केरला के ब्रांच के बारे में, पंजाब के ब्रांच के बारे में, उत्तरांचल के बारे में, उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं पता, बोलेगा वो अलग स्टेट है, अलग नहीं। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कोर बैंकिंग है, मतलब एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कस्टमर इन एनी ब्रांच ऑफ एनी डिपॉजिट एंड विड्रॉवल इज एट वन लोकेशन। सो एवरी ब्रांच इज ऑन द सेम सिस्टम, इट इज गुड, बहुत अच्छा है। उसी तरह स्टोर्स एक कंपनी के सेटअप में एक कोर होता है, सभी लोग अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो स्टोर्स के पास आते। तो स्टोर्स को ख्याल बहुत रखना पड़ता है और बहुत लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, माल लाना, माल को इशू करना, माल को रखना, एवरीथिंग, रिसिप्ट्स, स्टॉकिंग इश्यूज इज वन ऑफ द major jobs of stores, and all of these things which was the dialogue bazi which was connected to stores I already did last time, I spoke about it. आप इसको थोड़ा पॉज कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको स्टोर्स के फीचर्स, यूटिलिटी, मेथड्स, वैल्यूएशन टेक्निक्स समझ में आए। इशू के लिए स्टोर्स माल लाता है तो कौन सा डिपार्टमेंट, परचेस ऑर्डर, परचेस रिक्विजिशन, गुड्स रिसीव्ड, इंस्पेक्शन, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए। बट व्हेन द स्टोर्स गिव्स द माल, बेचता नहीं है, it gives it to the production department, it gives it to different departments, which are the documents that are required. Material requisition, because stores किसी का भाई नहीं है, भाई बहन मम्मा पापा नहीं है कि अरे वो डिपार्टमेंट देख रो रहा है उसको मैं कुछ गिफ्ट दे के आता हूं, नहीं, उधर से रिक्वेस्ट आने दे तो ही तू रिस्पॉन्ड कर इशू करके, बिकॉज लेटर ऑन जब चेकअप होगा ना तो तेरा चेकअप होगा एंड दे विल आस्क यू, द ऑडिटर विल आस्क यू, स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर्स मैनेजर, क्यों माल दिया, किसको माल दिया, किसके कहने पे माल दिया? अरे बाबा रिक्विजिशन पे साइन होना चाहिए, साइन होना चाहिए ऑफ द करेक्ट अथॉरिटी।
सो ऐसे ही गाड़ी नहीं चलती. ओके, देयर इज बिल ऑफ मटेरियल. व्हाट वाज दिस डॉक्यूमेंट? दिस वाज द डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइड इतने माल में काम होना चाहिए. यू सी, व्हेन यू गो टू अ गराज, व्हेन यू गो टू अ सर्विस आउटलेट फॉर अ टू व्हीलर, बराबर, जो लोग आपके व्हीकल पे काम करते हैं उन लोगों को उस व्हीकल का काम, जॉब कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ व्हीकल, और अगर आप सर्विसिंग कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, ग्रीसिंग कर रहे हो, इतने माल में काम होना चाहिए. उनके पास खुद का माल नहीं होता. दे हैव टू गो टू द स्टोर्स. एक अलग डिपार्टमेंट होता है. एंड दे हैव टू से नट, बोल्ट, स्क्रू, बल्ब, ये वो हमको दो, ऑयल हमको दो. बट स्टोर्स वाला नहीं बोलेगा ले ले जितना चाहिए. नो, दे हैव इन देयर सिस्टम्स, ये रिपेयर के लिए इतना माल, ये रिपेयर के लिए इतना माल, ये सर्विसिंग के लिए, ये मेंटेनेंस के लिए. दे डोंट इशू मोर देन दैट, बिकॉज व्हेन द सामने वाला रिपेयरमैन कम्स एंड आस्क, नहीं मेरे को 2 पैकेट दो, 3 पैकेट दो, द स्टोर्स विल से क्यों, बाकी के सब लोग तो इतने में 1 पैकेट में काम करते, तू 2 क्यों ले रहा है, तू 3 क्यों ले रहा है. बिल ऑफ मटीरियल, बिल ऑफ मटीरियल, उसमें क्वांटिटी रहता है, इतने में ही तुम्हारा काम हो जाना चाहिए. अगर एक्स्ट्रा लग रहा है परमिशन लेके आओ, डिपार्टमेंट का परमिशन लेके आओ. ओके, सो देयर इज अ कंट्रोल ओवर कितना आया कितना गया. एंड जो रखा उस पर कंट्रोल कैसे रखते हैं, बाय हैविंग अ बिन कार्ड. ओके, तो बिन कार्ड में कितना माल आया, कितना माल गया और कितना माल बाकी है, वो पूरा रिकॉर्ड रहता है. नाउ ऑल ऑफ दिस is what we did in the past tense. This basically is what a store looks like. So if I'm not mistaken, the Delhi government, the central government, vaccines manufacturers से Bharat Biotech, Serum Institute of India, very soon Dr. Reddy's is going to be manufacturing, स्पटनिक, जाइडस कैडिला करके एक कंपनी है. सो द गवर्नमेंट इज बाइंग, इसको रख रही कहाँ पे है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. ओके, सो गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को बोल दिया, केरला को, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, गुजरात को, राजस्थान को, अपने अपने स्टेट्स में कोल्ड फैसिलिटीज बनाओ, सो दैट व्हेन द वैक्सीन कम्स टू यू, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, you keep it at a particular temperature and then you manage those stores. Okay, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई शहर में they have made these cold outlet stores जहाँ पे these vaccines, I'm not saying ये vaccines है, but I'm just giving an example because if you can see above there are AC vents, so this is a cold area. Okay, it's a cold, so to say, stores. हाँ, बाकी if you think about a hotel, होटल में भी खाने के सामान के अलावा there are multiple other things, because you see the cleaning department is a different department. If you go to 5-star hotels या decently starred hotels, उनका क्लीनिंग का एक लेवल रहता है. ओके, सो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ सामान, तो सब उनके स्टोर्स में उनके हिसाब से जो सामान है वो रखा जाता है. एंड दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, समबडी हैज़ टू बी देयर कि कितना माल है, कितना कम हो गया, कब रीऑर्डर करना. दैट इज व्हाट वी विल गेट इनटू टुडे. डिफरेंट लेवल्स. दिस इज लाइक अ फार्मेसी. फार्मेसी में देर आर लॉट्स ऑफ रैक्स रेफ्रिजरेटेड, उसके अंदर लॉट ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन केप्ट. एंड फार्मेसी हैज़ टू बी, मतलब सी एवरी स्टोर हैज़ टू बी मैनेज्ड वेल, बट अ फार्मेसी हैज़ टू manage itself, anticipate a lot well, because it is giving medicines. किसी की जान बचानी है, और अगर आप जो सामने आया है उसको बोलो नहीं गलती हो गई, हमको पता नहीं था इतना जल्दी माल ख़त्म हो जाएगा, एंड somebody loses life, तो मतलब आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे. सो इफ़ यू आर अ स्टोर्स फॉर अ फार्मेसी, फॉर अ क्लिनिक और समथिंग लाइक दैट, आपकी जिम्मेदारी उतनी और बढ़ जाती है. सो डिफरेंट, गराज में जाओगे तो स्टोर्स अलग रहता है, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बोला. ओके, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू रिपेयर द व्हीकल, द 2 व्हीलर, द 4 व्हीलर, गैराज में भी स्टोर्स अलग से रहता है. सो व्हाट डिड आई, इतनी चर्चा किस बारे में हो रही है, क्योंकि स्टोर्स काफ़ी डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है.
जो डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होता है उसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स मंगाती है स्टोर से। जो डिपार्टमेंट मेंटेनेंस करता है उसके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज दे ऑल्सो से वी रिक्वायर नट, बोल्ट, स्क्रू ड्राइवर्स, डिफरेंट पार्ट। जो ऑफिस का डिपार्टमेंट है उससे भी कनेक्टेड है, क्योंकि ऑफिस के सप्लाईज स्टोर्स ही खरीदता है। और जो एसेट का डिपार्टमेंट है, क्योंकि अगर एक एसेट पुराना हो गया, नया एसेट खरीदना भी तो स्टोर्स का काम है। स्टोर्स इज अ कोर मेन। आयरन मैन देखा है, आयरन मैन हैज अ सर्टेन थिंग दैट पावर्स हिम, ओके, उसके चेस्ट पे लगा होता है, दैट्स अ कोर। कोर वो नहीं है तो काम आगे होने वाला नहीं है, आयरन मैन की पिक्चर्स बंद हो जाएगी। हाँ, स्टोर्स इज अ कोर, वो नहीं है। यहाँ पे पूरा रायट, ओके, पंगा चालू हो जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टोर्स, देयर आर सर्टेन लेवल्स जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ऑफ लेटली मैंने न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में काफ़ी नॉट गुड न्यूज़ बट लिटिल बिट ऑफ अ बैड न्यूज़ सुना है। ऑफ व्हाट? ऑफ अ लॉट ऑफ फ्लडिंग हैपनिंग, a lot of flooding, okay, and causing loss of life, which is very unfortunate, because if a flooding has happened, मतलब some river, some lake, some नाला, okay, उसमें पानी स्तर से ज़्यादा हो गया है, so there has to be a department जिनका काम है उस पर ध्यान देना, और उसके एक मैक्सिमम लेवल पे अगर वो पहुंचने वाला है वाटर लेवल, बाकी लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना कि प्लीज़ आपने अपने घरों से आप बाहर निकलो अगर जान बचानी, इवैक्यूएशन करना। ना, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई ये नहीं करता, नहीं, नॉट नथिंग लाइक दैट। इवन ऑफ लेटली इंटरनेशनल न्यूज़ में आई एम सीइंग के जर्मनी, बेल्जियम, नाउ दीज आर प्रोग्रेस्ड कंट्रीज, there was cloud burst, heavy rains, and many villages, many houses and many people, property loss. They also could not anticipate कि कितना मैक्सिमम लेवल है, कितना। स्टोर्स में ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देर इज़ अ मिनिमम लेवल, देर इज़ अ मैक्सिमम लेवल, देर इज़ अ रीऑर्डर लेवल, एंड देर इज़ अ डेंजर लेवल, ओके। डेंजर लेवल बाद में सीखेगी, डोंट वरी, वो इतना डेंजरस चीज़ नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज स्टोर्स एंड वॉट एवर आई हैव शोड प्रीवियसली। अलग अलग, a hospital has a different kind of a stores, a hotel has a different kind of a stores, a school will have a different kind of a stores, a religious institution, okay, whether वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनका स्टोर्स होगा, वो भी होगा, बट थोड़ा अलग वेराइटी का होगा। सो अगर हम बात करें हमारे घर में स्टोर्स कैसे होता है? वेल, कुछ इस तरह होता है। अगर आप बाथरूम में जाओ तो अगर आपके पास ड्रम होगा, ड्रम में पानी होगा, वो पानी का स्टोर्स है। वो या तो नहाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है या तो पीने के लिए होता है, बराबर। आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो इस तरह हो या उस तरह हो, उसके अंदर कुछ सामान रखा गया है। इन दैट योर मॉम, शी विल बी कीपिंग समथिंग इन माइंड कि इतना, यू सी, जब भी मैं जाता हूँ मार्केट, जो मैं जाता हूँ, ये सच है, टू बाई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई लाइक टू बाई अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब मैं बोलूँ यार एक बार जाके ख़त्म कर लो 10 दिन का, बट माई वाइफ, मतलब मैंने ऐसा किया है, और मेरे पत्नी ने, जैसे मैं पूरा मार्केट खरीद के, भाजी वाजी खरीद के घर आया हूँ, 2 थैला 3 थैला लेकर, मुझे लगा आज तो मेरी पूजा होगी, मैंने इतनी चीज़ें खरीदी है। पूजा तो दूर की बात है, आरती और दूर की बात है, हमें तो ऐसा बुरा भला कहा गया है, क्या बोलूँ मैं आपको, बोल भी नहीं सकता मैं, बिकॉज जेन्युइनली इट वॉज माई फॉल्ट, नॉट माई पत्नी। ऐसा नहीं है कि मेरे को उनसे डर लगता है और वो ये लेक्चर देख के मुझसे चिढ़ जाएगी, जेन्युइनली, बिकॉज शी सेड प्लीज़ लुक एट द किचन, प्लीज़ लुक एट अ फ्रिज, प्लीज़ लुक एट द कैपेसिटी वे वी कीप द वेजिटेबल्स। तुमने लाया 15 दिन का, कहाँ रखे, और बाहर रखे तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं बोलूँ यार बराबर है, मैं पढ़ाता हूँ स्टोर्स के बारे में और मेरे को मेरे स्टोर्स का पता नहीं है। अ किचन फॉर अ हाउस
अ फ्रिज फॉर अ हाउस इज लाइक स्टोर्स, बट इट हैज़ अ मैक्सिमम लेवल. उससे ज़्यादा आप खरीदोगे तो कहाँ रखोगे माल? इट हैज़ अ मिनिमम लेवल. ओके, अगर मिनिमम पे पहुंच गया तो खाना बंद हो जाएगा. एंड इट हैज़ अ रीऑर्डर लेवल. तो आई रिपीट, रीऑर्डर इज समवेयर बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम. जैसे ही आपके पास वो अंडे का रैक होता है ना, अंडा, एग्स, ओके, मे बी उसके अंदर आप 12 अंडे रख सकते हो, बट जैसे ही पहले मम्मी विल टेल कि बाबा 12 ही लेके आना, तो आप जाके 12 लेके आते हो. यू कीप इट 1 2 3 4 5 6 8 12 पहुंच गया. जैसे ही वो 4 हो जाएगा, मम्मी के दिमाग में है क्या है, अभी हमको खरीदना है. क्योंकि जैसे ही हम खरीदेंगे वो 4 भी खत्म हो जाएगा, तब जाके उसका रिप्लेसमेंट उसके अंदर आएगा. फॉर अस रिप्लेनिशिंग मतलब रिप्लेस करना, खरीद के लाना इज नॉट अ बिग डील. जाओ मार्केट में लेके आओ, आधे घंटे में काम खत्म. बट फॉर कंपनीज इट इज अ बिग डील, क्योंकि उनका ऑर्डर इतना बड़ा होता है कि वो गाड़ी आने में बहुत टाइम चला जाता है. बहुत टाइम मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ऑर्डर कंप्लीट होने में चला जाता है. तो दे हैव टू थिंक अ लॉट कि कितना माल पे मेरे को फट से रीऑर्डर करना है, ताकि वो लेवल जैसे ही नीचे जा रहा है, मेरी ऑर्डर वहाँ पे जा चुकी है, मेरा ऑर्डर वहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है, और मेरी गाड़ी वहाँ से निकल गई है, ताकि ये माल जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, डेंजर लेवल तक आ रहा है, मैं माल वापस से उसमें भर दूँ. सो आई रिपीट, जस्ट लाइक हमारे घर में मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड थोड़े थोड़े टाइम पे डेंजर लेवल पे पहुंच जाता है. ओके, हाँ, वैसे ही एक गोदाउन में there are these different levels. So today I am very quickly in the next 5 minutes, so it will not be a very long lecture. I will discuss with you the various levels, the various formulas that are useful to find these levels, and then आगे वाले lectures में उसको हम practically solve करेंगे. So आज थियरी के लेवल तक इसको रखते हैं. फाइन, लेवल की जानकारी इसको. सो मिनिमम लेवल का मतलब क्या है? देखो भाई, इतना मिनिमम, ओके, अगर क्या कहते हैं, एक ब्रिज के नीचे पानी बह रहा है, उसका एक मैक्सिमम एक मिनिमम लेवल होता है. मिनिमम के नीचे गया तो मतलब अभी सूखा है. ओके, एक मतलब बरसात कंप्लीटली जा चुकी है. अगर इतना पानी नहीं है कि हम इरिगेशन के लिए आगे जाके सप्लाई कर सके. सो मिनिमम लेवल इज अ लेवल जो कम वाला स्तर है, लेवल. ओके, हाँ, इतने तक माल गोदाउन में आ सकता है. मिनिमम लेवल ढूंढे कैसे? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू normal reorder period. Now these wordings, sir, what is reorder level? Don't worry, there's a formula for that, आने वाले हैं. So what is normal consumption? Consumption का मतलब खाना, बट यहाँ पे कोई इंसान नहीं खा रहा. यहाँ पे जो जॉब हो रहा है उसको कंप्लीट करने में जो माल आप मशीन में डाल रहे हो उसको कहते हैं कंजम्पशन. इफ यू आर, एग्जाम्पल मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था ना, इफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज टू ऑर्डर क्लॉथ, कपड़ा, फॉर मेकिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. ओके, सो लेट्स से कंपनी को, हमारे कंपनी को ऑर्डर मिला है 5000 खाकी के शर्ट्स बनाने का. 5000. तो हमारे फैक्ट्री में काम स्टार्ट होता है. हम लोग एक साथ में एक दिन में थोड़ी पूरा काम करेंगे. लेट्स से 100 शर्ट्स आर मेड इन वन डे. 100 शर्ट्स. तो वो 100 शर्ट्स के लिए कितना मीटर कपड़ा आपको लगता है? मे बी 20 मीटर कपड़ा, 30 मीटर कपड़ा. एक दिन में जितना कपड़ा आपको लगता है उसको कहते हैं नॉर्मल कंजम्पशन. नॉर्मल कंजम्पशन कि बाबा काम करने के लिए मेरी मशीन में मेरे को कितना खिलाना पड़ता है. नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड? मैंने कॉल किया, किसको? वेल, सप्लायर को कॉल किया. क्यों कॉल किया? अरे मेरे को माल चाहिए. कितना टाइम लेता है वो भेजने में? वो तो 1 हफ्ता लेता है, 10 दिन लेता है. हाँ, तो वो आपका हो गया नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड.
ओके हाँ, सो दिस इज वन। कुछ वर्डिंग्स है जिसको आपको पता होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं आपको। कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूसेज, यूसेज मतलब इस्तेमाल, बराबर। रीऑर्डर पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीड टाइम। तो मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद अलादीन का चिराग घिसते और माल आता है, वैसा नहीं, 10 दिन जाता है फिर माल, उसको कहते हैं लीड टाइम। लीड टाइम, everything will be there in your questions, and with the help of that you will be able to find out the minimum level. And the last, if normal consumption okay is not given, तो फिर क्या लेने का, average consumption. okay, तो sometimes we will use normal consumption, or sometimes if we can calculate average consumption, we will calculate average consumption. okay, this is the formula for minimum level. Right now only theoretically I've explained it to you. When this is actually practically solved तो वो भी आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट, मिनिमम तो एक लेवल होता है, दूसरा लेवल क्या होता है, मैक्सिमम, एकदम ऊपर का लेवल. उससे ज़्यादा अगर आप माल लेके आओगे तो मेरी वाइफ आपको होगा कुछ, आपका पूजा नहीं करेगी, उतना मैं बोल सकता हूँ. ओके, आरती नहीं उतारेगी, और हर वाइफ ऐसी करेगी. ओके, बिकॉज एक मैक्सिमम लेवल होता है. फैसिलिटी जो होती है आपकी गोदाउन की, आपकी स्टोर्स की, उससे ज़्यादा अगर माल आ जाएगा तो आप कहाँ पे रखोगे, दुकान के क्या दरवाजे के बाहर रखोगे. ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, तो हाउ डू यू फाइंड आउट दैट मैक्सिमम लेवल. इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं. इवन योर बॉडी इज अ स्टोर, बराबर. सो देर आर मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल्स ऑफ एवरीथिंग. वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो भी आपको मिलना चाहिए, इतना कम से कम, इतना ज़्यादा से ज़्यादा. यू कैन से सर आई गो टू द जिम टू वर्क आउट, गुड. तो सर ना मेरे को प्रोटीन लगता है, ऑल्सो गुड. तो मैं सर दिन में जो खाता हूँ सब में प्रोटीन रहता है. देख भाई, ऐसा नहीं है. एक मिनिमम है उसका, एक मैक्सिमम. मैक्सिमम क्रॉस मत कर, तो वो अच्छे के जगह पे तेरे बॉडी में खराब चीज़ें या खराब इफेक्ट लेकर आएगा. एनीथिंग विच इज मिनिमम विल बी बैड, मैक्सिमम विल बी बैड. इट हैज़ टू बी समथिंग इन बिटवीन. वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम लेवल. रीऑर्डर लेवल, आई मीन वी शुड नो कि भाई क्या है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. सी, रीऑर्डर लेवल अलग होता है. ओके, मैंने कहा ना आपके पास 12 अंडे हैं. 12 अंडे जब 4 होते हैं तो वो बन गया रीऑर्डर लेवल. मम्मी को पता है अभी हमको ऑर्डर करना है, बट कितना ऑर्डर करना है उसको कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी. कॉल करके बोलेंगे अंडे वाले अंकल इतने अंडे लेके आओ, वो होता है रीऑर्डर क्वांटिटी. तो रीऑर्डर लेवल इज डिफरेंट, वो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होता है. कहाँ पे, और रीऑर्डर क्वांटिटी अलग है कि भाई आप कितना माल ऑर्डर कर रहे हो, माइनस minimum consumption multiply by minimum reorder period. So all of these will be a part of your questions. The moment you have these data available, you can calculate the maximum level and the minimum level. Next, अंडे का ट्रे. तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, रीऑर्डर लेवल, इट्स समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, बराबर. एंड दिस रीऑर्डर लेवल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि द मोमेंट जो काटा है मैक्सिमम से नीचे 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 आके रीऑर्डर पे आता है, अ प्रोसेस स्टार्ट्स. एंड मेनी अ टाइम दैट प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, आदमी की भी जरूरत नहीं है. ओके, इनफैक्ट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट वाटर लेवल्स, लेक, डैम्स. ओके, सो द मोमेंट पानी बढ़ता है, मैक्सिमम लेवल तक जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज द डैम विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट मच ऑफ वाटर. द डैम डोर्स हैव टू बी ओपन्ड सो दैट द वाटर कैन बी रिलीज्ड. हाँ, तो दैट इज लाइक अ ओपन डोर लेवल. ओके, ताकि वो मैक्स लेवल तक ना पहुंचे, एंड द डैम एंड the people in staying the farmlands, the agricultural facilities are not harmed. एक कंट्रोल मैनर में पानी को आगे रिलीज किया जा सकता है. तो रीऑर्डर लेवल, वेल हम डैम की बात नहीं कर रहे, बट वो लेवल है जहां पर प्रोसेस, ऑर्डरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय, देयर इज अ नॉर्मल कंजम्पशन, वो अलग है.
देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन, वो अलग है, एंड इन बिटवीन इज एवरेज कंजम्पशन. ये है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड अलग है. मैं कॉल किया 10 दिन में माल आ जाता है, वो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. कभी कभी अगर गाड़ी डिले हो जाती है तो 15 दिन में आता है, तो वो मैक्सिमम reorder period होता है. Okay, all of these are different factors. They will depending upon the calculation determine the different levels. Minimum level formula, maximum level formula and reorder level. ये सब हम इकट्ठे करें तो आपको एक साथ में मिल जाएगी obviously. हाँ, danger level, ये जो मेरे पीछे है ये थोड़ा खतरनाक लेवल है. That is something which goes even below the minimum level. If you are coming to danger level, then what gets affected in a company? The production. क्योंकि माल इतना है ही नहीं कि आप अगर कोई भी हॉस्पिटल में to conduct a particular operation, you require a lot of apparatus. Okay? काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें जो not पुरानी इस्तेमाल की गई थी, न्यू. बट अगर स्टोर्स में आप गए और वो माल कम है तो कैन यू विदाउट समथिंग परफॉर्म एन ऑपरेशन? नो, क्योंकि वो माल है ही नहीं, तो वो काम ही नहीं हो सकता, बंद हो जाएगा. किसी की हॉस्पिटल में तो जान चली जाएगी, कंपनी में बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा. सो डेंजर लेवल के लिए आपके पास कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होना चाहिए. नॉर्मल कंजम्पशन वो तो नॉर्मली अवेलेबल रहेगा, नहीं रहेगा तो एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, टेक्निकल वर्ड में रीऑर्डर पीरियड फॉर एमरजेंसी परचेसेस. ओके, सो अगर एमरजेंसी में आपको एक ऑर्डर आता है तो एमरजेंसी में यू विल टेल द सप्लायर नहीं जल्दी जल्दी हमको माल भेज, जल्दी जल्दी भेज. तो वो नॉर्मली 10 दिन लेता है, मैक्सिमम 15 दिन लेता है, बट वो जल्दी कुरियर जेट इंजन लगा के कब भेज सकता है तुमको? मे बी 6 days, 7 days, 8 days, मे बी 5 days. हाँ, ऑब्वियसली तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट दैट इज टू टेक केयर ऑफ डेंजर लेवल कि भाई इतने लेवल पे हमारा माल आ चुका है, रिप्लेनिश, स्टॉक फिलिंग हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. 4 levels, इसमें से 3 as far as I am concerned is a lot more important: minimum, maximum, reorder. These 3. Danger level, yes, you should know it because it is a part of your level information. There is something called as buffer stock. वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, but मैं बात कर लेता हूँ उसके बारे में. What do you mean by buffer stock? Your mom, I always talk about mom because she is normally the one who has an idea कि किचन में क्या माल है. तो she will keep some चावल, some आटा, some rice, some sugar. खाना कापे में भी काफी छुपा के रखा रहेगा, इमरजेंसी में काम आता है, उसको कहते हैं बफर स्टॉक. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो वो कोई लेवल से जुड़ा हुआ नहीं है, बट एज फार एज लेवल इज कंसर्न दीज 3 एंड ऑल्सो डेंजर लेवल आपको पता होना चाहिए. अगेन इन मटीरियल चैप्टर माल कैसे खरीदते हैं, माल कैसे नॉट बेचते हैं, इशू करते हैं, which are the documentation required, what are the steps involved, what are the departments involved, and what are the various levels. Everything has been explained to you till today. After this, when we move on ahead, okay, all are practical concepts. तो अगर वो concepts पढ़ाए जाए कि this is also a practical concept जिस पे practical sums हमको solve करने हैं with the formulas that have been given to us. We will be using the formulas and solving levels and whatever are the remaining concepts based on that questions also. इधर तक अगर आपको कहानी नहीं बोल रहा हूँ बट लेक्चर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए लेक्चर को. इट इज़ गिविंग अस द नेसेसरी बूस्ट टू पुट इन मोर एफर्ट्स टू कीप द सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स एट लीस्ट टू कीप दीज लेक्चर्स रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. If you have any comments, if you have any doubts, if you have any requests, suggestions, कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो. सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए, और इन्फॉर्मेशन ये चैनल और चैनल के कंटेंट और लेक्चर्स के बारे में अपने दोस्तों में फैला दीजिए. ओके, इफ़ यू कैन डू दैट इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू अस. यू मे नॉट नो योर वन क्लिक फॉर अ शेयर ऑफ अ लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स is amazingly going to increase the reach of this particular platform. For you it's a click, for us it is a big
push. Okay, take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Till the time I meet you again, अपना ख्याल रखिए, stay safe, good day, God bless, bye for now.